اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید سورہ بنی اسرائیل، اسے الاسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 82 یعنی 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہ ظالموں کے لیے تو نہیں ہے مگر خسارہ ہی خسارہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے شرک کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر مذمت کی ہے اور ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے وہ ہے ظالمین، ظلم کرنے والے۔ ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، حکمران اپنی عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ تو فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ظالموں کے ساتھ جو ظالموں کا ساتھ دے گا تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان کا ساتھی ہے جو ظلم کا ساتھ دے گا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خسارے میں اضافہ ہی کریں گے، کمی نہیں آئے گی۔ یا اس دنیا میں پکڑے جائیں یا ادھر پکڑے جائیں، ان کے عذاب میں کمی نہیں آ سکتی، زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید پر بھی بات، ہم تو توحید کے ادنا سے خادم ہیں، لمبردار ہیں، توحید پر بھی بات ہوتی ہے اور ضرور کرنی چاہیے، وہ تو بنیاد ہے نا بھائی، توحید تو بنیاد ہے۔ لیکن اب خالی توحید نہیں بھائی، دیکھو جتنے ظالم حکمران گزرے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ مومن کا کام ہے۔ آوازیں اٹھائی ہیں، انبیاء نے اٹھائی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام جو تھے، دیکھو اپنے بمائے اہل و عیال کے ظالم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو چاہیے اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ظلم کے خلاف۔ دیکھیے یہ جو ہے نا یورپ کے اندر، وہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن وہاں یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر عوام کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے، اب تو ہوتی نہیں ہے، ہو بھی جائے، پوری قوم احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس میں ایک انہوں نے مسئلہ حل کروانا تھا، اور بھائی بچے، ینگ، بوڑھے، عورتیں، لیڈیز، مرد سب آ گئے سڑکوں پر، انہوں نے اپنی بات کو منوایا ہے، ڈرے نہیں ہیں وہ۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بزدلی ہے بھائی، لوگ ڈرتے ہیں، ہے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو پھر دیکھو دیکھی سارے ڈر جاتے ہیں۔ تو اگر مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اللہ سے ہی ڈرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ سے ہی ڈرنا ہے آپ نے، اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ اگر آپ کے حکمران صحیح ہیں، صحیح جا رہے ہیں، اگر عدل و انصاف قائم ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، زیادتی نہیں ہو رہی، اب یہ نہیں کہ ایک کو نوازا جا رہا ہے اور دوسرے کو دبایا جا رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، بھئی بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن اپنی پسند کا لیڈر ہو اور اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو آدمی آواز اٹھائے، اور دوسری جماعت کا لیڈر ہو تو آواز نہ اٹھائے، بولے اچھا ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ زیادتی تو زیادتی ہے بھائی، زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا لیڈر ہے، میری جماعت ہے۔ یورپ کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھائی، اور تو اور دوسرے ملکوں میں اگر دیکھو ہمارے سیلاب آتے ہیں،
ये वो तो हम तो मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है। वो तो मजलूमों का यहाँ भी आकर साथ देते हैं। वो हुकूमती सतह पर उनकी जो पॉलिसियाँ हैं ना वो अलग हैं। अवाम की बात हो रही है। वहाँ की अवाम जो होती है वो अपने जो उनकी वेलफेयर सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वो आती हैं यहाँ पर आकर मदद करती हैं, भी करोड़ों अरबों रुपए देते हैं वो मजलूमों के लिए। तो मजलूमों का साथ तो वो नहीं देखना होता कौन है, इंसान है बस। तो ये जो हमारे यहाँ जुल्म हो रहा है इसमें अवाम भी शामिल है। यानी एक ही किस्म का काम है, अपने लीडर ने किया है तो कोई हम उसकी वकालत करते हैं और दलीलें देते हैं, उसके झूठ की, उसके फ्रॉड की, 2 नंबरियों की दलीलें देते हैं। और नहीं नहीं, ये अगर ठीक है, अगर वो कुछ खाता है तो लगाता भी है। ये तो मुनाफिकत है सीधी सीधी। जब मानते हो कि वो खाते हैं लगाते हैं तो फिर कोई भी हो भाई, जैद बकर कोई भी हो, नाम नहीं किसी का, कोई भी साबित हो जाए खाता है तो वो जितना मर्जी लगाता रहे, हमारे ही पैसे है ना भाई। अब कोई आदमी जो है हमारी जेब से पैसे लेके आधे खा जाए आधे हम पर लगा दे, तो दुनिया में कोई इंसान का बच्चा होगा जो उसे कहेगा ये इंसान है? वो जालिम है, उसने क्यों खाया भाई? जो उसका हक बनता है, जो उसके लिए जायज़ है वही करेगा। ये तो नहीं है ठेका दिया अरबों रुपए का, खुद भी खाया, ठेकेदार को भी खिलाया और आवाम पे लगाया, तो पैसा किसका भाई? पैसा तो हमारा है ना। देखिए, लंबी बातें छोड़ें, आप माचिस खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। आपकी बिजली, आप इसका सही रेट जाकर निकाल कर देखें, असल रेट कितना है यूनिट का, और आपके ऊपर जो टैक्स लगाया गया कितना जालिमाना है। पेट्रोल के ऊपर टैक्स, आपकी गैस के जब बिल आता है ना, तो एक मिडिल क्लास, यार छोटा गरीब को छोड़ दो, मिडिल क्लास बंदे की आंखों में जब खून के आंसू होते हैं ना तो दिल जल जाता है। वो कहता है मैं घर चलाऊं या बिल दूं। अच्छा, ये जो बड़े हैं, आप करें जाके रिसर्च करें, बात गलत हो मैं मुजरम। आप रिसर्च करें कि बड़े बड़े जो एलीट क्लास के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो, सहाफ़ी, कोई भी हो भाई, कोई इदारा हो, ताकि अदलिया, सब कुछ भाई सबको पता है। और भाई उनसे और सलूक है, गरीबों से और। गरीब का मीटर उतार लिया जाता है, वहाँ करोड़ों रुपये खा गए हैं, वो बिल ही नहीं दिए। अखबारें बड़ी बड़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर बयान आ रहे हैं, वो बोल बोल कर एविडेंस दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, मौजूद है उनके। ये देखो भाई फलाना बंदा इतना खा गया। ये तोशा खाना से इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ियाँ ली हैं जो गैर कानूनी है, जो आइन में जो इसकी इजाज़त ही नहीं है, ले गए गाड़ियाँ को। है किसी ने पूछा? ये जो आयतें पढ़ते हैं बैठ बैठ के जज हजरात हमारे, उनको शर्म नहीं आती? उनको क्या हक पहुँचता है कुरान की आयत पढ़ने का, जब उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वो एक पार्टी जो है वो खुले अपना दंदना रही है और वो डाके मार रही है और वो खा रही है, और सब उनके अपने जो सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि ये तो अलाउ नहीं है गाड़ियाँ लेनी, तुमने क्यों ली हैं? तो वो कहती है, आगे से कहती है, बीबी साहबा कहती है काट दो मेरा क्लिप। ये जजों की नज़रों के अंदर चश्मे लगाए हुए हैं इन्होंने, हैं? उनको एक ही पार्टी नज़र आती है, जिसके पीछे सपोर्ट है उसको कुछ नहीं कहना, और जिसके पीछे सपोर्ट नहीं है उसकी छोटी सी बात भी पकड़कर उसके पीछे पड़ जाना। ये कौन सा अदल है भाई? कौन सा इंसाफ है? ये आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम, समझते हो तुम बड़े, तुम्हें कुरान आता है, सबको कुरान आता है, तुमसे अच्छा कुरान तो मौलवियों को आता है, पूरा पूरा कुरान पढ़ जाते हैं। लेकिन मौलवी भी डंडी मारेगा तो उसको कुरान नहीं देखा जाएगा कि इसको कुरान की आयतें पढ़नी आती हैं। ये बड़े रेफरेंस देता भाई आयतों के, देखा जाएगा इसका अपना किरदार क्या है, ये किस पार्टी के साथ मिला हुआ है, किस पार्टी के बारे में इसका क्या ख्याल है, ये जानबदार जज है या गैर जानबदार है, अपने बगाने की पहचान ये करता है, फ़र्क डालता है या नहीं डालता? कानून सब के लिए एक है। तो भाई आंखों में धूल, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो?
ठीक है ना। जो जज हो, हमें किसी से कोई गरज नहीं, किसी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो चीफ हो, जब तक वो बराबरी नहीं करेगा, अवाम को डराओ धमकाओ अंदर करो जेलों में डालो, दिलों में इज्जत नहीं होगी। और गालियां देंगे, बददुआएं देंगे, झोलियां उठा उठा के, खाना खराब हो तुम्हारा सबका जो नाइंसाफी कर रहे हो, जो जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की कसम, लोग बददुआएं दे रहे हैं, कहते हैं जालिमों पर अल्लाह की लानत, जालिमों पर अल्लाह की लानत। और हक को इंसाफ करने वाला जो होगा, जो देखेगा कि ये बंदा ठीक है, बड़े इसके मेरे ऊपर एहसान है, इसने मुझे जज बनाया है, वो बोलेगा जज बनाया तो कोई एहसान नहीं किया। अगर मैं मेयार पर आया हूँ, मेरिट पर आया हूँ, तो कोई मसला नहीं है, एहसान किस बात का। तेरे साथ भी वही करूँगा, तेरे साथ भी वही करूँगा। उसको कहते हैं जज। जज का माना क्या होता है? जस्टिस, इंसाफ। अल्लाह की कुर्सी पर बैठा हुआ है, मजाजी कुर्सी पर। अल्लाह की कुर्सी पर तो कोई बैठ ही नहीं सकता। अल्लाह ने उसको बिठाया अपनी इंसाफ की कुर्सी पर। उसने मरना नहीं, उसने जाना नहीं कब्र में। ये जितने फ्लैट लंदन में, यूरोप में बना रहे हो, ये इधर ही पड़े रहने हैं। तो कब्र में उधर उन्होंने पकड़ लेना तुम लोगों को, चाहे जज हो, वजीर आजम हो, कोई चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, कोई भी हो। चले गए कितने, यूब खां भी गया, वो भी गया, ज़ियाउल हक भी चला गया, मुशर्रफ भी चला गया, और ये बड़े बड़े जज जो हैं वो भी चले गए। तो बड़े बड़े सियासतदान, भट्टो, बेनज़ीर, सारे के कब्रों में पड़े हुए हैं। हाँ, तेरी बारगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए हैं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप जाएं कब्रस्तानों में, एक बड़े से बड़ा रईस है, वो भी मिट्टी में पड़ा हुआ है, और एक बेचारा मांगने वाला फकीर है या कोई मजदूर है, वो भी मिट्टी में पड़ा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में कख नहीं। ये दुनिया में तुम्हारी ठूठा है, दुनिया में तुम्हारी ठूठा है। उधर लग पता जाएगा जदू कन फड़ाने ने कब्र च फरिश्तिया ने, उन्हें कहना आज जज सब सीधे हो वहां जरा। एक कुरान में एक आयत है, जुक अपना जहन्नम का अजाब चख, जुक अंतर अजीजुल करीम। ये अजीजुल करीम अल्लाह का नाम है, बड़ा ही बुलंद, बड़ा ही अपना तकरीम वाला, शान शौकत वाला। ये फरिश्ते उसको कहेंगे तू बड़ा ही करीम और बड़ा ही अजीज, यानी बड़ा शान शौकत दुनिया में तेरी थी ना, अब तेरी सारी राह इधर निकलेगी, अब तेरा हशर करेंगे। सबसे ज्यादा जो लाइन लगेगी हुक्मरानों की लगेगी। दुनिया इनका तमाशा देखेगी, जो ये कर रहे हैं अवाम के साथ, इनके साथ वो हशर होना है। अगर आदिल है, हाकिम, जज हो, वजीर आजम हो, कोई भी हो, किसी अदारे का सरबराह हो, जितने भी लोग हैं, अगर वो अदल करेंगे तो नबियों के साथ होंगे, और अगर जालिम होंगे तो सबसे बड़ी लाइन इनकी लगनी है, जो छतरोल इनकी होनी है। दुनिया देखेगी इनका तमाशा, जलीलो ख्वार किया जाएगा इनको। जालिमों, तुमने फ्लैट बनाने के लिए, बच्चों का स्टैंडर्ड बनाने के लिए, बच्चों को हाई क्लास देने के लिए अवाम पर जुल्म करते रहे। गरीब का बच्चा टाट पे बैठा हुआ है, इनके बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? हमारा टैक्स है, हमसे पैसा ले रहे हो, बराबरी क्यों नहीं है? जाओ यूरोप में जाके देखो, ये हाल है ना यूरोप में। बताओ यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप के अंदर यहाँ से पाकिस्तानी इंडियन जाते हैं, वो उनका स्टेटस कितना हाई है, हर सहूलत मिल रही है उनको, वो आसमानों से नाजिल हो रही है दौलत, वो करप्ट नहीं है। वहाँ के लीडर जो हैं, जितने भी हैं उनकी जो बड़े हैं अशराफिया, वो ऐसे नहीं हैं जो पाकिस्तान के हैं भाई, ना ना ना। वहाँ तो भाई इंसाफ है, इंसाफ मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज है। कमाल हो गई है कि जिनके घर से इंसाफ का ऐलान हुआ कुरान पाक, वहाँ जुल्म का बाजार गर्म है, और कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मतलब है पाकिस्तान का कि जुल्म हो।
ला इलाहा ये कहता है कि जुल्म करो, अपनी मर्जी के बंदे लेके आओ, जो तुम्हारी बूट पालिश करे उसका वो ठीक हो गया, उसकी सारी बुराइयां ख़त्म, उसका सारा जुल्म ख़त्म, उसके सारे जुर्म ख़त्म। पहले जिनको तुमने कहा था ये मुजरम हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने माल लूटा हुआ है, वो अब सारे हो गए हैं, हाजी नमाजी हो गए, लॉन्ड्री में उनको क्लीन करके, ये तो भाई बड़ा मुहिब वतन हो गया। अच्छा जी वो फलाना वो गद्दार है, वो गद्दार हो गया। अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी में गटर में डूब कर मर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मौत भूली हुई है। जो यूरोप में जाओ, सड़कों पर खड़े होकर वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ बात करते, किसी की जरूरत नहीं है उनको हाथ डालने। यहाँ पुलिस आती है, गुंडे पुलिस है, ये गुंडे हैं, ये हमारी तनख्वाहों पर पलने वाले किराए के टट्टू, इनको भेजते हो, हमारा नाम ना आए और उनको बदनाम करते हो पुलिस को। वो बेचारे पुलिस वाले जो है वो रोटी रोजी क्या करें, फिर नौकरी से निकाल देंगे उनको। वो जाते हैं जाके जुल्म करते हैं, उनका ज़मीर भी कहता होगा यार हम जुल्म कर रहे हैं, हम ज्यादतियाँ कर। कई पुलिस वालों को रोते देखे, वो कहते क्या करें भाई, वो क्या नौकरी से निकाल देंगे, हमें क्या करें, हम नहीं चाहते हम ये काम करना, हमें करवाते हैं, ये पीछे वाले करवाते हैं। ये अल्लाह से डरो, या तो ऐलान कर दो कम्युनिस्ट हो तुम, कह दो हम नहीं मानते कुरान को, हम नहीं मानते इस्लाम को। क्यों तुम लोगों ने शराब की बोतल के ऊपर लिखा हो जामे शीरी ला इलाहा इल्लल्लाह? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। काम सारे फिरौन वाले हैं, तो जो बात करे उठाओ इसको अंदर कर दो। तो तुम में फिरौन में क्या फ़र्क है? एक ही हो तुम। कितने मारोगे? मारते जाओ। जिसकी ज़िंदगी हो ख़त्म हो गई है, मर गया, उसने मरना ही मरना है। तुमने कहाँ जाना है? बच जाना तुमने। मुशर्रफ किधर है? छतरौल हो रही होगी, बाकी के किधर हैं जितने जालिम गुजरे हैं? वो किधर हैं वो बताओ ना, जाओ जाके कपड़े पट के देखो, उनकी कीड़े खा रहे हैं उनको, वो मुक्के दिखाने वाले कीड़े खा रहे हैं उनको। तुम्हें भी कीड़े खाएंगे, हमें भी कीड़े खाएंगे। ये नहीं, कोई नहीं बचना। जो अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का हर वो दोस्त है जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, अल्लाह का दोस्त है। अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाया फिर परहेजगारी भी करनी है। ईमान नहीं खाली मुँह तो ला इलाहा, मुँह में राम राम बगल में छुरी, वो मुनाफिक होता है। जालिम कभी मोमन नहीं हो सकता। ये जालिमों का उधर ही होना है काम, जहन्नम में ही होने हैं सारे जालिम। जालिम नहीं बचता भाई, मुशरिक और जालिम नहीं बचता, इनकी माफ़ी है ही कौन, हमेशा जहन्नम में रहेगा जालिम। क्यों? अल्लाह ने मुशरिक के साथ जालिम का जिक्र किया। कौम को लूटने वाला, कौम को धोखा देने वाला, कौम के साथ फ्रॉड करने वाला, चाहे कोई हो भाई, हम नाम नहीं लेते। या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर, उनका खाना ख़राब कर, उनकी नस्लों को मिटा दे जालिमों को, ताकि और दूसरा जालिम पैदा ही ना हो। जिसने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, दो नंबरी की, अवाम को धोखा दिया और अपने मफाद के लिए सियासत की, अपने मफाद के लिए नाम इस्तेमाल किया, कभी पाकिस्तान, कभी झंडा, कभी फ़ौज, कभी कुरान, कभी लायत, सब कुछ ड्रामेबाजी जिसने भी किया, खुदा उनका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह करे, दुनिया में ज़लील ख्वार हों, और क़यामत में तो इंशाअल्लाह दुनिया तमाशा देखेगी उनका। वो गरीब मजलूम उठेगा, उसका गिरबान पकड़ेगा और वो ज़लील ख्वार हो गए, उमदे मुँह करके जहन्नम में डाला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।